Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm pretty good. That's great. So tell us about yourself. This is Mubashra Taiba, and I'm working as a president in Young Psychologists Association, as well as I have done my degree master post graduation MS in clinical psychology from UMT Lahore. Okay, that's wonderful. So are you also practicing it somewhere? Right now, not. Okay, so what's the future plan about your field? Obviously, I will practice in my field, that is clinical psychologist, and as well as I pursue my job as a president in Young Psychologists Association. Alright, that's great. So just as you know, the topic today is going to be the teacher involvement in the success of the student. What do you think? What is the definition of success? Let's talk about that. What is success? Then we can talk about like how student can become successful and what is the role of the teacher later on. When we talk about the success is the basically when the student or the children achieve their goals, educational goals and their personal goals and their life achievements. And the second one is, I think so, quality of life. According to my, आप जब बात करते हैं कि जी that person is very healthy, very wealthy, but actually there is a lack in quality of life. आपकी ज़िंदगी में वो satisfaction नहीं होती. That doesn't mean that कि अगर आपके पास एक अच्छा जॉब है और आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, आप 4 कनाल के घर में रह रहे हैं, that means you are a success. But according to our generation, वो सक्सेस की डेफिनेशन इसे ही कंसीडर करती है. अगर आपके पास बहुत अच्छी जॉब है और आप एक बहुत अच्छी जगह पर जो है वो आपका घर है और आपकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है जो आपको चाहिए तो आपने अचीव कर लिए, बट अगर आप लैक कर रहे हो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी लाइफ में, दैट मीन्स आई डोंट थिंक सो कि अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, दिस इज़ आवर सक्सेस. अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने कहा अचीविंग योर गोल्स इज द सक्सेस. So what are those goals? How to define that these are the right goals that I have set for my life? Number one. Number two, you have said like nowadays students usually or youngsters usually consider that if you are living in a very big house, if you have a very big car, that is the success. So if this is not success, so what exactly is the success? I mean, people when they have money, when they have a lot of money, they usually go abroad, they get the exposure. I mean, they are traveling throughout the world, they are going to UAE, I mean, like countries like those, and they are getting the exposure. And when they get back over here, they easily realize it that the way we are living our life is not the exact pattern. And then they, just because they have money and they have a better lifestyle as well, they go to the better gyms, better pools, better, I mean, everything better, you know, like. So I mean, considering that, just as you were saying, they consider this is the success. So if this is not the success, then what is the success and how to set the right goals? Achieving goal is we can say that individual differences. हमारा DNA सेम नहीं है तो हमारे लाइफ के गोल्स भी सेम नहीं हो सकते. हर पर्सन की लाइफ के गोल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और एट सर्टेन एज आपके जो गोल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं. बिल्कुल ठीक. और ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है कि आपके पास मनी है, आपके पास जो है वो अच्छा घर है तो दैट मीन्स यू आर नॉट अ सक्सेसफुल. इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस. दीज ऑल आर रीइंफोर्सर्स. बट आपको अपनी लाइफ में उन गोल्स को भी अचीव करना चाहिए, उन गोल्स को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि जो आपको लगता है कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं. आप अपनी सोसाइटी को, आप अपनी कंट्री को कितना फ़ायदा दे रहे हैं, आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं, आप तो सक्सेसफुल हो गए हैं, बट अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन कि आप ये देखें कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपसे कितना फ़ायदा ले रहे हैं. आपके उन गोल से आपकी कंट्री को, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपकी जो फैमिली है, आपकी जो कम्युनिटी है, उसे कितना फ़ायदा हो रहा है. अमेरिकन थ्योरी थी ना जिसके ऊपर एक बड़ी पावरफुल स्पीच भी थी. डू नॉट थिंक दैट व्हाट योर कंट्री डज फॉर यू, जस्ट थिंक व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री. दैट्स ट्रू. अच्छा, अब ये तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि आपने ये नहीं सोचना कि आपके पास क्या है, बल्कि आपने ये सोचना कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं. exactly. ये माइंडसेट कैसे बिल्ड होगा? और ये माइंडसेट बिल्ड होने के साथ साथ मेरा ख्याल है दोनों अप्रोचेस का माइंडसेट बिल्ड होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सम टाइम व्हेन वी आर ऑन द गिविंग साइड, सो वी हैव नथिंग, एंड व्हेन वी हैव नथिंग, हाउ पीपल ट्रीट अस. वेरी गुड क्वेश्चन. आप हम इस चीज़ को, इस माइंडसेट को कैसे अडॉप्ट करें? ये हमारी जो कहानी है या ये जो फेज़ ऑफ लाइफ है, ये आपकी स्टार्ट होती है स्कूल से.
Okay. या आपकी स्टार्ट होती है घर से बिल्कुल कि ठीक। आपने अपने घर से कौन सा माइंडसेट लेके आप स्कूल में आते हैं। एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, कभी आपने उसे ये पूछा कि बेटा आपको स्कूल क्यों लिया जाया जा रहा है? बस वे कहते हैं कि जी अच्छा आपने स्कूल में पढ़ना है। बच्चे ने देखा कि अच्छा मेरे बड़े बहन भाई स्कूल जाते हैं और उनको जब पॉकेट मनी मिलती है वो स्कूल जाते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं, And this is दोस्तों the के साथ pattern of खेलते हैं, life. पैटर्न ऑफ लाइफ। लेकिन एक्चुअल में नहीं बताया कि आपको पढ़ना क्यों है। एक्चुअली दिस इज अ गोल फॉर स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ के फेजेस के साथ आपके गोल्स चेंज होते रहते हैं। आप एक स्टूडेंट को बताएं कि आपने इसलिए पढ़ना है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को में जितने गोल हैं उन्हें तो अचीव करें, अपना करियर भी बनाएं, बट उसके साथ साथ आप अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी को उन गोल्स के थ्रू किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो ये माइंडसेट जो है वो यूजुअली हमारे टीचर्स को भी गाइड करना चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो हमारे पेरेंट्स को भी एजुकेट करना चाहिए कि बेटा these are your values, these are your responsibilities, being Pakistani, being citizen, being Muslim, being woman, what is your responsibility in your life? I think so, yes. So what do you think, like इसके ऊपर काम हो नहीं रहा अभी इस वक्त? नहीं, मुझे लगता है कि काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च हमारा ये कह लें कि 10 और 90 का रेशो है। 10% आप कह लें कि अभी बहुत ज़्यादा जैसे स्कूल्स हैं उनमें बहुत अच्छे जो है वो ऑब्वियसली अभी अगर आप देखें सोशल जितने लोग काम कर रहे हैं उनके भी तो पेरेंट्स हैं, उनको ये माइंडसेट कहाँ से मिला? अगर आप मिसाल लें अब्दुल सत्तार ईदी की तो उन्हें वो माइंडसेट कहाँ से मिला था? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है, आपके टीचर्स का बड़ा रोल होता है। पूरे स्कूल में आपको कोई एक अच्छा टीचर मिल जाता है जो आपको गाइड करता है कि बेटा आपने ग्रेड्स तो अच्छे लेने हैं लेकिन ग्रेड्स के साथ साथ आपने अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है। अगर उन्हें कुछ समझ ना आए तो आपने उन्हें बताया, वहीं से उनका वो जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होना शुरू होगा। ज़रूरी नहीं कि हम बच्चे को बड़े बड़े बताएं कि जी अच्छा आपने अपने मुल्क के लिए जान दे देनी है। आप जितना बच्चा है आप उसे उतना ही फीड करें। आप उसे बताएं कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड की हेल्प करेंगे, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है, आपके पास एक अच्छा सोल्यूशन है, अगर आप उसे अच्छा सोल्यूशन देंगे दैट मीन्स कि आप उसे हेल्प कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों में बिल्ड करने के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब टीचर और आई एम सॉरी लाइक इन फैक्ट पेरेंट्स किस तरह से पार्ट बन सकते हैं इस चीज़ को समझाने में बच्चे को कि उसने किस तरह से गोल सेट करने हैं, किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करना है, किस तरह से उसने सक्सेसफुल बनना है और ये सारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज जिनकी आप बात कर रही हैं वो अडॉप्ट करने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर ये है कि जो बच्चे होते हैं वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जैसे उसके पेरेंट्स उसके सामने रोल मॉडल होते हैं। बच्चों के सामने जो सबसे ज़्यादा रोल मॉडल होता है वो पेरेंट्स का होता है, सिबलिंग का भी हो सकता है। आप ये देखिए कि आपका जो घर का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो किन एक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, वो किन मॉरल वैल्यूज़ को अडैप्ट कर रहे हैं, वो घर में किस तरह से बिहेव करते हैं। बच्चा एग्जैक्टली सेम वही करेगा जो उसका फादर, जो उसकी मदर, जो उसके सिबलिंग्स जो हैं वो वैसे बिहेव कर रहे होंगे। आपने यूजुअली सुना होगा जी अच्छा पेरेंट्स कहते हैं हमारे घर का इन्वायरमेंट बहुत हेल्दी है, हमने अपने बच्चे को हर फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। यूजुअली हम कहते हैं कि अच्छा इनको तो ज़िंदगी में कोई मिसाल नहीं लेकिन फिर भी ये शाय है, ये चुप रहता है, ये बोलता क्यों नहीं है, ये लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे टीचर, इसको क्वेश्चन आता है लेकिन ये आंसर नहीं करता इन फ्रंट ऑफ ऑल द क्लास। अब इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि उसने अपने घर में क्या देखा है कि उसके जो फादर है वो बहुत अथॉरिटेटिव हैं। वो जब भी घर में आते हैं तो वो मदर पर डांट डपट शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं अच्छा मैं थका हुआ आया हूँ, आपको नहीं पता मैं आपके लिए कमाता हूँ। ऑल दीज थिंग्स, वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं यूजुअली हमारे कल्चर में तो बहुत आम है। अच्छा, उससे क्या होगा कि अच्छा बच्चा जो है वहाँ पर उसको जो सेल्फ स्टीम वो लो होना शुरू की कि अच्छा इस घर में तो मेरी मदर की रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे भी इजाज़त नहीं है बोलने की, मुझे भी इजाज़त नहीं है कि मैं अपना प्रॉब्लम जो है वो किसी से शेयर कर सकूं या मैं कुछ डिस्कस कर सकूं। कम्युनिकेशन गैप आ गया, घर में कम्युनिकेशन गैप आया, इंटरेक्शन नहीं हो रहा किसी के साथ, वो अपनी चीज़ें शेयरिंग नहीं कर रहा। जब वो स्कूल में गया तो वो अपनी क्लास के किसी बच्चों के साथ जो है वो शेयर नहीं करता, वो चुप बैठा रहता है, वो पीछे बैठा रहता है, वो किसी से बोलता नहीं है। टीचर भी उससे समटाइम्स क्वेश्चंस पूछे तो वो हेजिटेट फील करता है और टीचर कहते हैं कि ये बच्चा नालायक है। एक्चुअली वो बच्चा नालायक नहीं था, उसको नालायक बनाया गया पहले घर में और फिर स्कूल में। टीचर को ये चाहिए कि उसको फ्रंट पर बिठाए, पूछे, प्यार से बच्चे से पूछे कि आपके घर में सब कुछ ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है। लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ पर ऐसा रिवाज नहीं है। लेकिन अब फिर भी ये है कि स्कूल काउंसलर का कॉन्सेप्ट है। अभी भी हमारे बहुत ज़्यादा प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें स्कूल से कॉलेजेस को हायर किया जा रहा है, स्कूल काउंसलर का हायर किया जा रहा है कि बच्चों की जितनी भी इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करने के लिए। ओके,
अच्छा, अब जैसे हम पेरेंट्स और टीचर्स इन दोनों की कोलैबोरेशन किस तरह से बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? ये तो बहुत एक निक्स आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है। जब एक पेरेंट्स टीचर की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ऑब्वियसली वो किससे इम्पैक्ट करेगा बच्चे को, उसकी एजुकेशन में, उसके करियर में, उसकी मोरल वैल्यूज़ में, उसके अच्छे बिहेवियर में। वो जितनी भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था उनको ओवरकम करने के लिए, उनसे डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए टीचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज वेल एज पेरेंट्स। घर में पेरेंट्स को चाहिए कि वो हमेशा टीचर से पूछें कि ये क्लास में कैसे बिहेव करता है। अच्छा, ये घर में चुप चुप रहता है, मैं इसके लिए बड़ी परेशान हूँ, ये क्या बोलता नहीं है क्लास में, क्या ये आपको जो भी लेसन है इसके टेस्ट कैसे हो रहे हैं। अच्छा, आपने सिर्फ ये नहीं पूछना होता बेटा आपके मार्क्स कितने हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चा घर में आया, बैग उसने रखा नहीं, आज तुम्हारे साइंस में मार्क्स कितने आए, बताओ मामा। अच्छा, वो 12 में से 10 आ गए हैं, या 12 में से जो है वो 8 आ गए हैं, तो माँ की फ़ौरन पिटाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो ये नहीं पूछे कि बेटा आपने याद किया था, आप भूल गए थे। अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी, अच्छा आपको रिकॉल करने में इशू आ रहा था, अच्छा कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, क्या था, आपने क्यों नहीं आप लिख पाए। अच्छा, ऑब्वियसली आप ये देखिए ना कि बच्चे का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर हमारा एक और बहुत बड़ा इशू है कि जब बच्चा कहेगा ना कि अच्छा अम्मी जान मुझे फीवर है, मैंने स्कूल नहीं जाना, तो माँ फ़ौरन जी पूरे घर में ऐलान करती कि आज ये बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, इससे फीवर है। समटाइम्स बच्चा आपसे कहता है अम्मा मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता। वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि एक्चुअल में बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। हम समझते हैं कि जब टीनेजर में होते हैं, एडल्ट्स में होते हैं, तो इमोशनल प्रॉब्लम भी है, सोशल प्रॉब्लम भी है, बिहेवियरल प्रॉब्लम भी है, लेकिन जब आप स्कूल के बच्चों की तरफ आते हैं यही सेम प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी है। मेरा 6 साल का नेफ्यू है, मामा आज जो है ना वो मुझे हमजा ने आज मुझसे बात नहीं की है, वो घर में आके बच्चा रोया है, क्या है, इमोशंस हैं, उसने इस चीज़ को फील किया है। वहाँ पर आप अगर उस चीज़ को एजुकेट नहीं कर रहे हैं, वही इमोशंस आपको 20 साल के बाद आपको इसके इतने बैड कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, फिर आप बेयर नहीं कर सकेंगे। यही वो बच्चे हैं जो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, जो सोशली इंटरेक्ट नहीं करते, बड़े होकर वो फिर क्या है ड्रग्स की तरफ जाते हैं। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लीड करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, ड्रग्स, सेक्सुअल, ऑल दीज थिंग। फिर उससे जाके फिर हमारे पेरेंट्स कहते हैं जी अब पता नहीं, मैंने तो तरबियत अच्छी की थी, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही थी। मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स तरबियत अच्छी नहीं करते या वो कोशिश नहीं करते, वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को बेस्ट दें, लेकिन वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। जहाँ पर उन्हें ज़रूरत है कि वो खुद अपने बच्चे को एजुकेट करें अबाउट इमोशनल प्रॉब्लम्स, अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स, अबाउट बिहेवियरल इशूज़ की। अगर आपकी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आपने उसको रिजॉल्व किस तरह से करना है। अच्छा, इसका एक सेकंड पिक्चर इसकी ये है, यूजुअली पेरेंट्स अपने बच्चों को पैम्पर्ड भी बहुत कर देते हैं। आपका एक बेटा है तो आपने बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर दिया, हाथ ना लगाओ, छलांग ना लगाओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। अगर बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव है तो वो उसका एक वो नेगेटिव एक्ट नहीं है, लेकिन हम उसको एज अ कंसीडर करें नेगेटिव एक्ट। अच्छा, ये तो बच्चा बदतमीज़ बहुत है, बच्चा बदतमीज़ नहीं है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है, आप उसे एक्सप्लोर करने दें। बट हमारे यहाँ फ़ौरन रोक दिया जाता है, आप कभी भी बच्चे को ना रोकें। यही वो बच्चे हैं जिनकी फिर सेल्फ स्टीम घर से लो होती है, टोक दिया जाता है, वो फिर बच्चे स्कूल में भी जाकर वही प्रॉब्लम्स, देन यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके प्रॉब्लम्स, और फर्दर उनकी जो लाइफ है उसमें भी ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम कॉज करता है। अच्छा, अब आपने जैसे भी जिक्र किया कि एक बच्चा अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो उसको फ़ौरन छुट्टी एक्सेप्ट हो जाती है, और अगर वो कह देता है कि मैं पढ़ना नहीं चाह रहा तो फिर उसको ज़बरदस्ती पुश करके भेजा जाता है, इनफैक्ट मारा भी जाता है। और मेरा ख्याल है ये एक वजह बनती है कि वो बाद में समझ आता है कि झूठ बोलूँगा, तबीयत ख़राब का कहूँगा, पेट दर्द का कहूँगा, सर दर्द का कहूँगा तो आज छुट्टी हो जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे आप दूसरी बात ये बताइए कि हमारे यहाँ पे क्या पेरेंट्स लिटरेट हैं पेरेंट्स बनने के लिए? अच्छा, इस पर कोई वो मैं ऑब्वियसली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं, वी कैन से दैट येस एज वेल एज नो। यहाँ पर ये है कि प्री मैरिज काउंसलिंग नहीं है। हमें ये नहीं पता कि अच्छा हमें इस चीज़ को पहले अश्योर करना चाहिए, असेस करना चाहिए इधर अ गर्ल अ बॉय कि वो इतना कॉम्पिटेंट है, वो इतना रिस्पॉन्सिबल है कि वो शादी की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें फुलफिल कर सके। दिस इज़ अ वन स्टेप। इन सेकेंड स्टेप, जब आप फादर मतलब ऑब्वियसली सोच रहे होते हैं या मदर सोच रही होती है कि अच्छा हमें कंसीव करना चाहिए, उससे पहले इस चीज़ को असेस करना चाहिए कि क्या आप इतने कॉम्पिटेंट हैं, क्या आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक फैमिली मेम्बर जो आपकी एडिशन हो रहा है आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फुलफिल कर सकें। अच्छा, सारे आप देखते हैं कि अच्छा मेडिकल फिटनेस का देखना है,
कंसीव करने से पहले। बट आप ये देखें कि क्या आपकी मेंटल हेल्थ, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, आपका बिहेवियर एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं, क्या आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि आप आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जो बच्चे के साथ जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, 100 प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप उनके साथ टैकल करने के लिए मतलब वो ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट, रिलायबल हैं? एक्चुअली नॉट। हम ये देखते हैं कि अच्छा फिजिकल फिट हैं तो हमें अच्छा एक ये और बहुत है, अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, वो कुछ लोग प्लान करते भी हैं बट वो हमारे बूढ़ों का अच्छा 1 महीना हो गया शादी को, साल हो गया शादी को, एक वो वाला बहुत फैक्टर है। तो यहाँ पर उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। आप उन्हें एजुकेट करें कि जो आपका दौर था ना उस पर चीज़ें, बच्चे बड़े सुलझे हुए होते थे, बड़े तमीज़दार होते थे, बड़े अच्छे होते थे। आजकल दौर हाजिर के मुताबिक अगर हम देखें तो इस तरह नहीं होता। हम तो भी खुद अभी बच्चे हैं, आपको लगता है कि हमारी अपनी लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते हैं, हम एक दूसरे पर जो शाउट कर रहे होते हैं, हमें 2-2 मिनट के बाद गुस्सा आ रहा होता है, वो मुझे ब्लेम करता है, मुझसे ब्लेम करता है, क्या हमें लगता है कि हम इतने कॉम्पिटेंट हैं कि हम तीसरे बंदे की एडिशन करें और वो इस सारे इन्वायरमेंट से इतना हेल्दी इन्वायरमेंट उसके लिए होगा? एक्चुअली नॉट ट्रू। अच्छा, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि पेरेंट्स अपने सिर्फ फिजिकल फिटनेस की तरफ नहीं जाना, आपने अपने इमोशनल, मेंटल, अपने बहुत सारे फिटनेसेस की तरफ जाना। अच्छा, क्यों नहीं जाते? क्योंकि रिजल्ट, जैसे आपने कहा कि रिजल्ट वुड गो टुवर्ड द नेगेटिव साइड। अच्छा, अब ये रिजल्ट अगर नेगेटिव साइड के ऊपर जाता है, हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रैक्टिकल टेस्ट आ जाए, वो टेस्ट आप पास करें, ओनली देन यू आर गोइंग टू बिकम अ पेरेंट। आप सिर्फ एक एज अ होल, एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे ये बताइए कि किस तरह से इन चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। क्या ये रोल गवर्नमेंट का है कि कोई पेरेंटिंग के ऊपर कोई ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई जाए, या ये रोल किसी स्कूल इंस्टीट्यूट का है कि व्हेन दे आर इन द यूनिवर्सिटी, दे आर डूइंग देयर मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, उसका पार्ट बना दे, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ पेरेंट क्वाइट इन नियर फ्यूचर। क्योंकि अब उसके बाद तो यही है ना, डिग्री कर ली, अब उसके बाद जॉब लगेगी एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट मैरिड। तो आपने अब जब बनना ही है पेरेंट, तो आपको उसके ऊपर गाइड कर देते जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट नहीं है, या हमारे पेरेंट्स ने हमें गाइड करना है कि बेटा इस तरह से इमोशनल वेलनेस के ऊपर काम किया जाता है, आपकी थॉट्स के ऊपर, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर और थॉट प्रोवोकिंग के ऊपर, डेवलपिंग के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की या यूनिवर्सिटीज़ की, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि वहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर इनिशिएटिव लिया जा सके। लिया जा सकता है, लेना भी चाहिए, बट व्हाई इम्पॉसिबल? सर अभी तो बात करें तो इकबाल पढ़ाने की इजाज़त नहीं है आपको, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पेरेंटिंग तो बहुत बात की चीज़ है। अगर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा, 1 मिनट, क्यों इजाज़त नहीं है? ये एक दूसरी लंबी बहस है, इसको इसमें एडिट मत कीजिएगा। ये एक दूसरा ऑब्वियसली अच्छा, इसमें सर ऐसा है कि यूजुअली हमारी हुकूमत को भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इसका मतलब ऑब्वियसली, और बहुत ज़्यादा ऐसे इदारे हैं जो आप ह्यूमन राइट्स पर काम कर रहे हैं, आप बच्चों को लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और कितने सोशल इश्यूज़ हैं जिन पर आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो पेरेंटिंग पर क्यों नहीं? ऐसी कौन सी भी मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं देखी जो कि प्योरली पेरेंटिंग पर काम कर रही हो। और व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को, तो उन्हें भी एक्चुअली में नहीं पता कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या फिर कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन बेचारों को भी नहीं पता। सो यहाँ पर रोल बनता है हमारा, बीइंग साइकोलॉजिस्ट, हमें इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए, प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाने चाहिए जिसमें हम लोग जो है पेरेंट्स को गाइड करें, बच्चों को गाइड करें, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें। बीइंग एजुकेशनिस्ट भी ज़रूरी नहीं है कि ये एक रोल सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट का ही है। बीइंग एजुकेशनिस्ट, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आप अवेयर हैं, तो आपको ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवानी चाहिए। अगर आपका फैमिली सर्कल है तो उसमें आपको अपने फ्रेंड्स को गाइड करना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में पता भी होता है वेल अवेयर, बट वो फिर भी अपने बच्चों को गाइड नहीं करते। तो यहाँ पर ये है कि हमें मतलब ऑब्वियसली सबका रोल बनता है, और मेरा ख्याल है कि अगर कोई प्रॉपर कोर्स नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में कोर्स नहीं है, तो आपको करना क्या चाहिए, पूरे वीक में एक आप दिन रख लें, उसमें आप 30 मिनट्स रख लें कि इस दिन जो है हम मोरल वैल्यूज़ पर, पेरेंटिंग पर, या जो भी हमारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो भी हमारे नीड ऑफ द लाइफ है, कि हमें अपनी लाइफ में वो लाइफ स्किल यू कैन से दैट कि हमें वो वाले भी अडॉप्ट करने चाहिए, और उसके लिए ट्रेनिंग्स ही हैं। 30 मिनट्स वुड बी गुड इनफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट हैपनिंग। वो ट्रेनिंग्स मिलेंगी कहाँ से? ऑब्वियसली ट्रेनर से, साइकोलॉजिस्ट। अगर पेरेंटिंग के इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो कौन गाइड करेगा? आपको काउंसलर गाइड करेगा, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गाइड करेगा, और उसके साथ साथ जो है एक स्पिरिचुअल फैक्टर भी है। उसके लिए जो है आप जितने भी इस्लामियात की टीचर्स हैं वो उसकी सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की बात जो है, इमोशनल प्रॉब्लम्स की जितने भी ये बात है, ये हमारा इस्लाम भी, दीन भी, हमारे स्पिरिचुअलिज्म ये उस पर भी गाइड करता है।
अच्छा, लाइफ स्किल्स को तो हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार ये तो पता ही है हमें, इसमें हमने क्या जब सीखा है। एक्चुअल में इसके ऊपर आती है तो awareness फिर कैसे आएगी? सबको अवेयरनेस कैसे आएगी? अच्छा, इसमें भी ऐसा है कि अगेन हमें इस चीज़ पर बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि जब आप अपनी डिग्री ले रहे हैं क्या आपके पास ये वाली लाइफ स्किल्स हैं, और जब वो इस चीज़ को असेस करेंगे, हम प्रॉपर इसके कुछ टूल्स भी होते हैं, और अगर टूल्स लेंगे थ्रू इंटरव्यू वी कैन असेस कि अच्छा इस बच्चे में जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो बैठा हुआ था तो आई कांटेक्ट का इशू था और उसने जवाब देने में कितनी देर लगाई, एक्चुअल में उसका CGPA मतलब 4 है, दैट मीन्स कि उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स कि लाइफ स्किल्स की उसमें कमी है। आप वहाँ पर ये देखें कि उन बच्चों के लिए आप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अवेयरनेस कंडक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम्स डिफरेंट, जैसे हम कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं ना, बिल्कुल आप उसी तरह जो है इन लाइफ स्किल्स पर, एम्प्लॉयबिलिटी पर, जितनी भी आपकी लाइफ स्किल्स है उन पर भी आप ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी वेल सर। अच्छा, जैसे भी आप पहले बात कर रहे थे कि हमें कोई वीक के 30 मिनट निकाल लेने चाहिए, और लाइक वी कैन स्पेंड दोज 30 मिनट माइट बी विद अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट को कैसे देखती है हमारी सोसाइटी और कैसे देखना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट को जो हमारी सोसाइटी है वो तो कहती है कि पागल है, बातें करते हैं सिर्फ, और बल्कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है तो वो आपको ये होता है कि आपने 6 मंथ्स तक लेनी है, आपने 12 मंथ्स तक लेनी है। लेकिन बीइंग साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहूँगी कि साइकोलॉजी जो है वो आपको ये एजुकेट करती है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम दोबारा भी आएगा, बिकॉज लाइफ इज़ अ वेरी हार्ड वॉक, इसमें अप्स एंड डाउन आने ही आने हैं, बट आपकी लाइफ में जब यही प्रॉब्लम दोबारा आएगा तो आपने इसके साथ मैनेज कैसे करना है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, जो कि कौन बता रहा है आपको? आपका साइकोलॉजिस्ट बता रहा है, आपका काउंसलर बता रहा है, आपका थेरेपिस्ट आपको बता रहा है। अच्छा, यही प्रॉब्लम वो खुद भी आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके पास वो सारे सॉल्यूशंस होते हैं। साइकोलॉजी में ये नहीं होता कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो लिख के दे देता है दिस इज़ योर सॉल्यूशन। वो ये होता है कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपकी म्यूचुअल कन्वर्सेशन से, आपकी म्यूचुअल डिस्कशन से वो सॉल्यूशन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पर एक्चुअल में वो सॉल्यूशन क्लाइंट बताता है। एक्चुअल में वो सॉल्यूशन क्लाइंट ही बताता है आपको, साइकोलॉजिस्ट नहीं बताता। अच्छा, क्लाइंट लैग कहाँ कर रहा था? उसके जहन में इतनी नेगेटिव थॉट्स थी, इतनी पैसिमिज्म थी, इतने स्ट्रेस था कि वो उस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। अब साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, 1 बाय 1 उसके जितने भी बैरियर थे उन्हें ब्रेकआउट किया, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, फिर उसको उस सॉल्यूशन की तरफ लेके आया। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि सॉल्यूशन क्लाइंट बताता है। ये इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी से बीइंग साइकोलॉजिस्ट आप उससे प्रॉब्लम पूछ रहे होते हैं तो वो आपको सारे प्रॉब्लम बता रहा होता है, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद आप उससे पूछते हैं अच्छा सोल्यूशन क्या है, तो वो खुद आपको बताता है कि ये सोल्यूशन है, जिसका शायद उसको रास्ता नहीं पता। अल्टरनेटिव हम पूछते हैं अच्छा अगर आप इस तरह ना करते तो आपके पास अल्टरनेटिव क्या होता, वो फिर सोचता है कि अच्छा मैं ये नहीं तो ये, तो देन हम फिर उस पर एजुकेट करते हैं कि दिस इज वेरी गुड। अच्छा, ऐसा ही नहीं है, जैसे मैंने एक दफ़ा बड़ी अच्छी बात सुनी कि इस दुनिया में कौन सा मोटा शख्स है जिसको ये नहीं पता कि मैंने पतले कैसे होना है। अच्छा, उसको पता है कि पतले कैसे होना है, फिर बाद में फिर आती है लैक ऑफ डेडिकेशन, आपकी उसकी वर्किंग कितनी है। तो इट्स जस्ट लाइक यू गो टू अ डॉक्टर गेट अ प्रेस्क्रिप्शन, दैट्स नॉट द सोल्यूशन दैट यू आर गोइंग टू गेट क्योर्ड बाय दिस डिजीज। प्रेस्क्रिप्शन ले आने से कुछ नहीं होगा, उसके बाद यू हैव टू टेक द मेडिसिन रेगुलर, वो दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट, या रेगुलर वो चीज़ें, वो मुश्किल पार्ट है। अच्छा, इसी तरह से हमारी कौम को अगर हम लोग देखें, पेरेंटिंग की बात करें, टीचर्स की बात करें, दे ऑल नो व्हाट दे शुड डू, but they do not have might be the inspiration, the motivation or might be the dedication कि जिसके साथ वो काम कर सकें। वो डेडिकेशन कैसे डेवलप होगी? अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं उनको ये रोल पता है, और एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारे, और मिथ यू कैन से दैट, उन्हें ये लग रहा है कि वो अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेंस बीइंग मदर, अगर मैं मतलब कुछ यहाँ पर बच्चा कुछ गलत करेगा तो मैं ये बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करूँगी कि अच्छा मेरा फॉल्ट था, मैं कहूँगी नहीं मैंने तो हमेशा से गाइड किया है, इसके अच्छे के लिए सोचा है, हाउ कैन डू दिस, कि आप कह सकते भी ये बच्चा जो है इसका ठीक। अभी यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, मुझ में अगर एक्सेप्टेंस होगी तो देन मैं जाऊँगी किसी काउंसलर के पास कि अच्छा मैं यहाँ मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम्स है, अच्छा मैंने इसकी तरबियत जो वो इस तरीके से की थी, अब इसका सल्यूशन क्या है, मैंने लैक यहाँ पर किया है। यूजुअली 80 to 90% आप उठ के देख लें, चाहे वो एजुकेटेड हैं अनएजुकेटेड हैं, उनमें एक्सेप्टेंस ही इस बात की नहीं कि अच्छा हम लोग गलत हो सकते हैं, तो बच्चा गलत होगा, हमने सारी ज़िंदगी गुजार दी, तजर्बात हमारे इतने ज़्यादा भी, आप कैसे कल के बच्चा उठ के कह दे भी आपकी पेरेंटिंग ठीक नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अच्छा
बीइंग ह्यूमन ऑब्वियसली पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते, उनसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कहीं ना कहीं कमी रहेगी होगी। अच्छा, एट दिस स्टेज हम इस कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस कैसे डेवलप होगी? Acceptance एक्सेप्टेंस इस वजह से अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल, अब आप किसी के पास भी जा करके, फॉर एग्जांपल अगर आप साइकोलॉजी की बात करें, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, आप पेरेंट्स के पास जाएं, somehow they accept that thing कि we have some sort of lackness। लेकिन ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 5 साल पहले आप चले जाएं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके उनको कहें कि लाइफ स्किल्स पढ़ानी है, सॉफ्ट स्किल्स पढ़ानी है, साइकोलॉजी पे बात करनी है, दे वुड से वी आर डूइंग इट ऑलरेडी एंड दे वुड टेक इट लाइक कि यार ये तो हम पे सवाल उठ गया कि क्या हम परफेक्ट नहीं है और हमारी यूनिवर्सिटी को बाहर से ट्रेनिंग्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये एक्सेप्टेंस कैसे बिल्ड होगी, जो थोड़ी बहुत हुई है सोसाइटी के अंदर, फर्दर कैसे बिल्ड किया जा सकता है? फर्दर भी सर इस पर काम भी हो रहा है, फर्दर लोग जो है वो अवेयरनेस क्रिएट भी कर रहे हैं। अच्छा, एक्सेप्टेंस जब हमने किसी को दिलवानी हो तो सबसे पहले हम उसे रियलाइज़ करवाते हैं कि अच्छा इसके पॉजिटिविटीज़ क्या हैं, इसकी नेगेटिविटीज़ क्या हैं। अगर तो हम ये काम कर लेते हैं, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके बच्चे को ये फ़ायदा होगा। आप खुद असेस करें, मैं नहीं आपसे कह दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, आप खुद असेस करें, आप देखें आपने कहाँ कहाँ लैक किया है, और अगर वो पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है, मदर फादर एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहाँ पर हमें इस चीज़ को रीइंफोर्स करेंगे कि अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो आपके बच्चे को होगा। और अगर यहाँ पर हम बात करें यूथ की कि यूथ भी अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो उनके साथ भी यही सेम प्रोसेस होगा। अगर हम उन्हें ये कहेंगे कि अगर आप ये जो आपके लू फॉल्स थे, यहाँ पर आप लैक कर रहे थे, अगर आप इनको कम्पीट कर लें, अगर आप इनको फुलफिल कर लें तो आपकी लाइफ जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, अचीवमेंट्स आपकी यहाँ से, गोल्स हैं। रीइंफोर्सर बहुत ज़रूरी है, वो चाहे पेरेंट्स के लिए है, वो चाहे टीचर्स के लिए है, वो चाहे बच्चों के लिए, आपको उन्हें रीइंफोर्स करना पड़ता है कि अच्छा अल्टीमेटली आपको इसकी आउटकम ये मिलेगी। आउटकम नहीं बताएंगे तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेरी गुड। इन वन वर्ड, व्हाट इज योर आंसर? इज आवर एजुकेशन सिस्टम एंड द यूथ ऑन द राइट ट्रैक और नॉट? नो। वेरी गुड। व्हाट इज द रोल एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशंस? वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेशंस we have to take the initiative. Exactly. And people are just not accepting that they are on the right, they're not on the right track. They all believe like we are doing our best. Doing our best means like the result would be the best, but result is not coming right now. हमारी youth जो है वो extreme negative side की ओर जा रही है. They are not productive at all. It's only the finances, no moral values, no societal values, nothing. Religion बिल्कुल साइड पे रख दिया. हर चीज को आपने वैनिश करके रख दिया. In fact एक नेगेटिविटी सारी वो आपको पूरी ओवरकम कर चुकी है, हमारी पूरी सोसाइटी को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे इवन पॉलिटिकल सब बिलीव्स को, हर एक चीज़ को. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द बेबी स्टेप, कहाँ से ये चीज़ें बेहतरी की तरफ शुरू हो सकती हैं? अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान में 60% जो है वो यूथ है, और True. किसी भी कंट्री में जो है वो इतनी यूथ नहीं होती, और किसी भी मुल्क का कीमती असासा उसके नौजवान नस्ल होती है. दैट मीन्स कि हमारे पास एसेट्स हैं. हम लोग लैग कर रहे हैं ट्रेनिंग में, हम लोग लैग कर रहे हैं कि बच्चों को ये बताने में कि आप में ये स्किल है. हम बच्चों को इस यहाँ पर लैग करें कि उन्हें डायरेक्शन देने में. बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ थी, लेकिन हमने क्या किया, उसकी सेल्फ स्टीम को इतना लो कर दी कि वो बेचारा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया कि उसमें अच्छी और गुड क्वालिटीज़ क्या थी जो कि सर्व कर सकता था अपनी कंट्री को. गवर्नमेंट को हमें ये एक प्रपोजल देना चाहिए, इंस्टीट्यूट को भी ये प्रपोजल देना चाहिए कि अच्छा आप अपनी करेंट रिपोर्ट देखें कि आपकी जो यूथ है वो क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वो एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं है, क्यों वो डायरेक्शनलेस है, क्यों आपकी यूथ में डिप्रेशन जो है वो हाई रेट पर चला गया, क्यों आपके स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे ड्रग्स की तरफ चले गए. दे आर ऑल द प्रॉब्लम्स. आप पहले उन्हें, फर्स्टली तो ये होता है कि आप उन्हें अप्रिशिएट भी करें कि आपने ये वाले स्टेप्स लिए, अच्छी बात है, एजुकेशन में ये वाला सारी चीज़ें हो रही है, बट आप लोग लैक यहाँ करें. अगर हम अपने इस लू फॉल्स को अगर हम फुलफिल कर लें तो हमारे पास जो आउटकम्स होगी वो ये होगी. हम वहाँ पर आउटकम्स मेंशन करें कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान में इकॉनमी आपकी, ऑब्वियसली पाकिस्तान में आपकी कितने इनिशिएटिव्स हैं, कितनी चीज़ें हैं जो कि बच्चे हमारे कर सकते हैं. बट ड्यू टू ऑल दीज रीजंस कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ स्टीम नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स, ग्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं, बट उनके पास वो लाइफ स्किल्स नहीं है जिनकी बेसिस पर जो है हम लोग ग्रो कर सकते हैं, बीइंग कंट्री, बीइंग कम्युनिटी, बीइंग सोसाइटी. तो ये वो सारी चीज़ें कि हमें एक प्रपोजल जो है वो गवर्नमेंट को देना चाहिए, उसके साथ साथ हमें एजुकेशनिस्ट को देना चाहिए. जैसे गवर्नमेंट स्कूल पे तो फिर भी लंबा प्रोसीजर है कि चलो वो आएगा फिर इम्प्लीमेंट होगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो मेरा ख्याल है कि इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है. Yeah, not a big deal. True. So just as you're mentioning that there are 60% of the youth is there. इस 60% youth से आप पूछें do you want to become a teacher?
They would say no. Do you want to become Imam Masjid? They would say no. Do you want to become a TikToker? They would say yes. Do you want to become a singer? Yes. वो प्रोडक्टिविटी, वो चीज़ें जो एक हम कह सकते हैं कि हमारी यूथ एक बिल्कुल सही डायरेक्शन के ऊपर है, वो बिल्कुल मौजूद नहीं है. और मैं नहीं समझता इस बात को कि अगर लोग कहते हैं कि नहीं जी मौजूद है, आप गलत बात करें, क्योंकि ये बहुत लोग कहते हैं जो पावर में होते हैं वो हमेशा यही कह रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत काम कर रहे हैं, अभी उस चीज़ पे भी काम हो रहा है, उस चीज़ पे भी काम हो रहा है, सब चीज़ें इन प्रोसेस का झंडा गाड़ देते हैं, काम कुछ कंप्लीट नहीं करता. एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो 5 years का टेन्योर है या जितनी देर आपकी एक सीट है बीइंग ऑन अ प्रिंसिपलशिप, तब तक तो आप काम कर रहे हैं, या जब तक आपको ये पता है कि यार एज फार एज माई चाइल्ड इज सिक्योर, इट इज़ नॉट नन ऑफ माई कंसर्न. तो ये सब चीज़ें हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इन सब चीज़ों के ऊपर वर्किंग होनी चाहिए. साइकोलॉजी इसके ऊपर वर्क कर सकती है, और बच्चों के इनफैक्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं दे शुड ऑल्सो एंटर इनटू द स्कूल्स एज वेल. वहाँ से ही जाकर बेसिकली अगर द स्कूल्स एक्सेप्ट देम, एंड एटलीस्ट आई बिलीव लाइक एवरी स्कूल शुड स्टार्ट हायरिंग एटलीस्ट 3 साइकोलॉजिस्ट. एटलीस्ट 1 कर लें, एक भी नहीं है. 1 तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही नाइंसाफी होगी ना, कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है, अगर लेट्स सपोज 500 जहाँ पर एक भी नहीं है ना, कर ही नहीं रहे. बट या यू आर राइट. चलें, ओके, लेट्स टेक अ स्टार्ट. एटलीस्ट एक कर लें ताकि आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझें. और वो आउटकम्स देखें. एग्जैक्टली, दैट्स नॉट लाइक योर साइकोलॉजिस्ट इज नॉट लाइक अ मैथमेटिकल टीचर कि वो आपने 2 + 2 4 करके दिखाना है. साइकोलॉजी में कभी 2 + 2 9 भी करना पड़ेगा आपको, 2 + 2 -48 भी करना पड़ेगा, सो दैट ही शुड अंडरस्टैंड कि यार उसकी प्रॉब्लम क्या है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स है. बट थैंक यू सो वेरी मच मुबशिरा फॉर कमिंग, शेयरिंग योर व्यूज, और इन सब चीज़ों को टू अनलीश दीज फैक्ट्स जिसको लोग कहते हैं कि नहीं सब चीज़ें ठीक हैं और ये सच है ही नहीं. थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज. थैंक यू सो मच.